in the topic coordinate geometry for class 10 standard. Let us deal with distance formula. Actually, what is distance formula? Let us see. Suppose if I have a point ax1 y1 in a plane, there is another point say B, that is x2 y2 in the plane. Suppose there is a point ax1 y1 b x2 y2 in the plane, and if at all I have to find the distance between these two points, how to find it? That is what we have to see in the topic distance formula. Let us see what we can do. The first thing that I will do is I will join it. I will join these 2 points A and B. So what you should write here is, let ax1 y1, let ax1 y1 and b x2 y2, b x2 y2 be the 2 points in the plane. 2 points in the plane. Now I will make some construction here. What is that construction? See here, I will draw perpendiculars on the x-axis in this way. What I have done is, I have dropped perpendiculars on the x-axis. Say this is AM, say this is BN, and I will complete this triangle here. This also I will drop a perpendicular here, and this I will call it as say C. Now this is perpendicular, remember. So what I have done is, I have made small construction here, and that construction is what? Construct what? Construct AM perpendicular to x-axis, BN perpendicular to x-axis, and also AC perpendicular to BN. AC perpendicular to BN. Now just see here, since the point M lies on x-axis, I can say that the coordinate of this point is x1 0. It lies on the x-axis, so y coordinate is 0. This also lies on the x-axis, so y coordinate is 0. This will be x2 0, because y coordinate is 0. Now remember children, what I want to find out is, I want to find out the distance AB. So you can see clearly ACB is a right angled triangle, and in the right angled triangle, what I can do is, in right angled triangle ACB, I can say that AB square is equal to BC square plus AC square. AC square plus BC square. AB square, hypotenuse square, is equal to base square plus perpendicular square. I would like to call it as first equation. Now let us see how to find the value of AC. See here, the length of AC is equal to the length of MN. The length of AC is equal to the length of MN. Let me tell you what I have done so far. I have taken a point ax1 y1, b x2 y2. Okay. Then I have dropped a perpendicular from A to this axis, from B to this axis, and then I have joined it. Now in the right angle triangle ACB, मैंने क्या किया है, AB square is equal to AC square plus
BC स्क्वायर किया है, इतना लिख के रखा है। पाइथागोरस थ्योरम तो आप सब जानते हो। अब अगली बात आती है MN की। AC की लंबाई MN के बराबर है, सो MN किसके बराबर है? ये ON और ये OM माइनस करोगे तो दैट मीन्स व्हाट? ON माइनस OM किसके बराबर है बच्चों? ये पूरा लेंथ ऑफ ON माइनस ये पूरा लेंथ ऑफ OM, और ON की लंबाई है बच्चों x2, ON की लंबाई है x2, OM की लंबाई है x1, यानी क्या हुआ? AC की वैल्यू, the value of AC is x2 minus x1. Now I have got this one. Now I need to calculate the length of BC. BC अगर आपको चाहिए तो BC की लंबाई है BN माइनस CN। देखिए आपको ये लंबाई चाहिए तो ये पूरा लेंथ में से इसको अगर मैं कट कर दूं तो आपको BC मिलेगा। तो BC इज इक्वल टू BN माइनस CN, BN माइनस CN, और ये CN की लंबाई इक्वल टू AM है। तो ये होगा BC इज इक्वल टू BN माइनस CN का लंबाई है इक्वल टू AM। देखिए दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, एंड दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, दैट मीन्स माइनस AM, यानी BC इक्वल टू Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1। अब आप देखो, आपको AC की लंबाई मिल गई, आपको BC की लंबाई मिल गई, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर B। What you got is, you got the length of AC, you got the length of BC. Now put these two equations in the first equation. So what you will get here is AB square is equal to, in place of AC you have to write x2 minus x1 whole square, and BC square is equal to Y2 minus Y1 whole square. So the length of AB will be equal to under root x2 minus x1 whole square, under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And this formula we call it as distance formula. In mathematics what we call distance formula. डिस्टेंस फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में दूरी को नापने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज इक्वल टू व्हाट? AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सर अगर ये पॉइंट्स ओरिजिन में रहा तो, मान लीजिए ये पॉइंट A x1 y1 की जगह पे अगर यहाँ रहा तो, अगर यहाँ पर रहेगा तो देखिए आप क्या हो जाएगा, A का वैल्यू होगा 0 0, क्योंकि ओरिजिन के अंदर पॉइंट्स क्या होता है? 0 0 होता है। B का पॉइंट क्या होगा? x2 y2, B का पॉइंट होगा x2 y2। तो ये वैल्यू अगर आप इसमें डाल देते हो तो आप देखिए कि AB इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा? आप देखो जहाँ पर x2 है वहाँ पर आप x2 लिख सकते हो, जहाँ पर x1 है बच्चों देखिए x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, बिकॉज द पॉइंट इज एट द ओरिजिन। इफ द पॉइंट लाइज इन द ओरिजिन देन x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0, y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0। सो x2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 whole square. So this will be equal to, AB is equal to under root x2 whole square plus y2 whole square.
और इफ़ यू से सर हम x2 नहीं लिखना चाहते हैं सर, हम x2 और xy की जगह पे अगर आप कहते हो कि सर a 0 0 ले लेंगे और b xy ले लेंगे, अगर आपका कहना ऐसे है तो डिस्टेंस फॉर्मूला विल बिकम AB इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डिस्टेंस फार्मूला। यानी ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर आपको नापनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे। 2 मिनट में फिर से मैं आपको रिवीजन करके इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ए बी दो पॉइंट्स हैं, ए x1 y1 है, बी x2 y2 है। मुझे इनकी दूरी नापनी है, तो दूरी नापने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बाद में यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया। तो अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा। अब मुझे ए सी नापना है, तो ए सी की लंबाई है एम एन के बराबर, ए सी की लंबाई है एम एन के बराबर, और एम एन अगर मुझे चाहिए तो ओ एन माइनस ओ एम लिखना पड़ेगा। तो ओ एन माइनस ओ एम लिखा, और ओ एम यानी x1 है और ओ एन यानी x2 है, यानी x2 माइनस x1 हो गया। नेक्स्ट अगर मुझे बी सी चाहिए तो दिस बी एन माइनस सी एन है, सी एन की लंबाई ए एम के बराबर है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो इसके अंदर अगर मैंने इसको डाल दिया तो मुझे डिस्टेंस फार्मूला मिल जाएगा। और अगर ओरिजिन में रह गया, अगर ये पॉइंट मान लीजिए किसी ने मुझे कहा सर मेरा ए तो यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अरे भाई अगर आपका ए ओरिजिन में है तो आपके x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यानी x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कीजिए, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कीजिए, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन मिलेगा। दैट्स ऑल।